A very good evening, everyone. I would like to welcome all our speakers today and our participants who have taken their time out and here to listen to three doctors from three different distinctive fields talking about how to stay positive during these times. Tangram has organized this talk कि हम positive कैसे रहे. Every day seems like a battle. हम लोगों को bright हमारे पूजो पड़ा है. we can't see a bright future these days. And Tangram is a human development center, and we provide a lot of different services in psychological well being. We provide therapy, counseling, career counseling, and human resource organizational field. And we are very much into philanthropic work. We've been conducting a lot of webinars pertaining to COVID health, pertaining to grief, helping out. Nimrat ma'am has been helping out a lot of people to train in the concept of telecounseling. And आज हमने सोचा that why don't we invite two very distinguished doctors and talk about COVID. So before we begin, I would love to introduce our panelists today, starting with Dr. Gayatri Rawal. She has more than 18 years of experience in the medical field and has worked as a consultant in the area of clinical counseling as well. She started her career as a consultant obstetrician and a gynecologist at Bharti Hospital at Patan. Sorry. She has been working as a consultant and a medical officer at Ahmedabad University since the last 3 years. And she has also published a paper on preoperative concerns of patient in rural setup, which has received the Best Paper Award in IMA Gujarat Medical Journal. Our next guest is Dr. Ketan Shah. He is an MD in homeopathy and he has been practicing since 1989. He is a professor of Materia Medica at Ahmedabad Homeopathic Medical College. He is guiding PhD and PG students and he has been examiners for many universities. He is also the former president of Homeopathic Medical Association of India, Gujarat branch. And our last speaker is Dr. Nimrat Singh. She is the founder of Tangram and has been a practicing psychologist since more than 20 years. She founded the first counseling center in Ahmedabad, and she's an international psychotherapist specializing in couple and family therapy, trauma therapy, dynamic and cognitive therapies. It gives me so much pleasure and so much gratitude to have all of you here on board with us and just to share your insights with us. So before we begin, I request all the participants to make sure that you are writing your comments and your question in the comment box and our speakers will soon answer them. So मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर गायत्री के लिए है. So these days काफी सारे न्यूज में ये बातें चल रही हैं कि थर्ड वेव ऑफ कोविड इज गोइंग टू हिट अस. तो बिना डरे एंड बिना हम बहुत एंशियस या फियरफुल हुए हम इसको कैसे फेस करें एंड हम कैसे प्रिपेयर्ड रहें. A very good evening and let me thank you for letting me be a part of this conversation today. So good evening all. And before मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ. This story I have heard from my professor. जब हम कॉलेज में थे तब हमारे प्रोफेसर ने ये स्टोरी हमको कही थी. Now प्राचीन काल में जब भी कोई महामारी या कोई बीमारी किसी शहर में अंदर आती थी तो शहर में आने से पहले कुछ साधु संत जो उस शहर को बीमारियों से बचाते थे वो शहर की सीमा पे खड़े होते थे और जैसे ऐसी कोई बीमारी आती थी तो बीमारी को अंदर लेने से पहले वो उनको सवाल करते थे कि तुम शहर में कितने लोगों को अपने साथ लेकर जाओगे और उसके बाद ही उनको अंदर आने मिलता था. ना अक्सर बीमारी जो है वो अकेली नहीं आती थी. बीमारी के साथ जो है वो मौत आती थी, मतलब मृत्यु आती थी और मृत्यु के साथ जो है फियर यानी कि भय, ये दोनों कंपेनियन इलनेस के साथ या बीमारी के साथ जरूर होते थे. और ये साधु संत इन तीनों से पूछते थे कि तुम कितने लोगों को अंदर ले जाओगे.
ना बीमारी कहती थी कि मैं इतने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगी। मृत्यु जो है वो कहता था कि मैं बीमारी जितने लोगों को ले जाएगी उनसे आधे लोगों को तो डेफिनेटली मैं ले जाऊंगा। और जब भय से पूछा गया कि तुम कितने लोगों को ले जाओगे, तो भय ने कहा कि मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछने के बाद इन तीनों को शहर में अंदर एंट्री मिलती थी। और महामारी काफी फैल जाने के बाद जब ये लोग लोगों को ले जाने लगते थे, तब ये साधु संत देखते थे कि बीमारी जो है वो अपने साथ जैसे कहा था उतने लोगों को ले गई। मृत्यु जो है वो भी जैसे प्रॉमिस किया था उसने कि मैं आधे लोगों को ले जाऊंगा, तो एज प्रॉमिस्ड वो भी उतने ही लोगों को ले गई। पर साधु संतों ने देखा कि जो भय था उनके पीछे बड़ी भीड़ लगी थी, मतलब काफी लोग, मैक्सिमम पीपल उन्हीं के साथ थे और वही ले जा रहे थे। भाई सबको ले जा रहा था, तो उन्होंने रोका और पूछा कि भाई तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं ले जाओगे, तो ऐसे कैसे हो गया कि तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग हैं? तो भाई ने सिर्फ इतना कहा कि मैं इनको नहीं लेकर जा रहा हूँ, ये खुद ब खुद मेरे पीछे चले आ रहे हैं। सो आई गेस आज ठीक वैसी ही कुछ परिस्थिति या माहौल बना हुआ है। हम सारे लोग फियर और डर से घिरे हुए हैं। सो डेफिनेटली ऐसे समय में आई वुड जस्ट से दैट अपना संतुलन बनाए रखे, डू नॉट पैनिक, और पॉजिटिव थॉट्स के साथ फैक्ट्स को बिलीव करते हुए हम लोगों को इस महामारी जो पैंडेमिक कोविड का है उसको हटाने में, उसको दूर करने में आई थिंक वी शुड फॉलो अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। और इसको फैलाने से भी रोक सकते हैं if we actually follow the facts rather than following fear. Now इसके साथ now coming back to the question, कुछ speculations definitely हैं थर्ड वेव को लेकर के कि ये ज्यादा शायद सेकेंड वेव से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, या it is expected कि अक्टूबर या सितंबर इस दौरान ये हाइक हो जाएगा, ज्यादा देखने मिलेगा वगैरह वगैरह। बट आई फील दैट थर्ड वेव का जो स्केल है और जो उसकी टाइमिंग है वो शायद हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, या वो प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है। एंड डेफिनेटली बेवकूफ है वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये महामारी और ये पैंडेमिक जो है वो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है। So definitely, I would say that this pandemic is not inevitable. Now, having said that, I also believe कि जैसे मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि महामारी को फैलाने से हम लोग जरूर रोक सकते हैं। ना कुछ ज्यादा नहीं करना है, ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है, ये कुछ ऐसा है जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। This is just a reminder to all those people who have just got complacent. ठीक है, सो क्या करना है, आपने 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है, मास्क हमेशा पहने रखना है। आजकल तो डबल मास्क का भी आजकल गवर्नमेंट भी बोल रही है कि डबल मास्क पहने रखिए। और यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक चीज पे ज्यादा जोर दूंगी कि इस मास्क को आपने एप्रोप्रिएटली स्टोर करना है। Cleaning, storing and also disposing this mask appropriately, ये ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मास्क रखना पहनना जरूरी उतना ही है जितना इसको स्टोर, क्लीनिंग और डिस्पोजल करना है। तीसरी बात, अवॉइड 3 C's, माने spaces that are enclosed, that are closed, spaces that are crowded and spaces that would actually involve close contact, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इंडोर्स मिलने से बेहतर है कि आप आउटडोर्स मीटिंग रखें, या मे बी वी कैन हैव अ वर्चुअल मीटिंग लाइक दिस। और जब भी आप इंडोर्स हैं तो आप इसका ध्यान रखें कि आप विंडोज ओपन रख रहे हैं,
ओवरक्राउडिंग नहीं हो और मास्क जरूर पहने. अगेन नेक्स्ट इज गुड हाइजीन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रेगुलरली अपने हाथ साफ रखें. अवॉइड टचिंग योर फेस, नोज, नाक, हाथ, कान, मुंह को ज्यादातर आप छुए ना, उसका ध्यान रखिए. Whenever you need to cough or sneeze, एल्बो ऊपर रख के कॉफ स्नीज करें. या दूसरा है कि आप टिश्यू पेपर से भी अपना माउथ नोज कवर करें और फिर खांसे या स्नीज करें. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज you can frequently clean. Do we need to tell some people? I'm getting disturbed. I request everyone to keep their mics on mute, please. Thank you. Yeah, so always clean and disinfect वो areas जो ज्यादातर आपने छुई है, टच होती है, जो ज्यादा यूज होती है, उन areas को आप clean रखें और disinfect करते रहें regularly. Last but not the least, if you are home and if you have any symptoms, so kindly recognize those symptoms. Stay home, self-isolate yourself, get tested. Or if symptoms persist for a very long time after taking medications like only Crozin, Metacin or Dolo 650, इसके बाद भी अगर 3-4 दिन के बाद भी अगर symptoms ज्यादा रहते हैं, then please consult your physician. Eat well, keep yourself hydrated. Well nourished food लेना चाहिए. पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर कम से कम. सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लीजिए. एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. और मेंटेन योर ऑक्सीजन लेवल. देखते रहे अपने ऑक्सीजन लेवल को. पल्स ऑक्सीमीटर यूज करके नहीं है तो प्लीज खरीदिए. ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कैसे करते हैं वो उस पे आ जाएगा. एनी ऑक्सीजन लेवल दैट इज बिलो 94 एसोसिएटेड विद सिम्टम्स ऑफ जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ऐसी सब चीजें हैं, तो इम्प्लाई करता है कि शायद आपको निमोनिया है. ऐसे टाइम में आप प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए. अगेन घर पे अगर आइसोलेटेड हो, प्लीज डू नॉट स्टार्ट ऑन ऑक्सीजन अपने आप से. ऑक्सीजन एक मेडिकेशन है, एक मेडिसिन है, उसको सुपरविजन में ही लेना चाहिए. Again, just one last thing I would say, that don't be an opinion maker. That is one thing. Follow facts rather than following fear. ये हमको महामारी को स्प्रेड करने में रोक सकता है. Choose your words carefully. Again, the way we communicate can definitely affect other people's attitudes. So with this positive note, I think there is no need to panic, and we just need to stay positive. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think जो आपने guidelines दिए हैं, just simple guidelines, if we follow them, वो भी काफी ज्यादा helpful रहेगा लोगों के लिए. मेरा next question डॉक्टर केतन के लिए है. आजकल न्यूज पे काफी सारी नई नई बीमारी आ रही है. आई थिंक मैंने कल ही पढ़ा कि चाइना में एक नया केस है बर्ड फ्लू का, कोई ह्यूमन को. एंड नॉट जस्ट दैट, अलग अलग टाइप के राजस्थान में, गुजरात में केसेस आ रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है अभी, और हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? Thank you and welcome everybody. Good evening and thank you to Nimrat madam for organizing this session. जो आपने बोला कि नई नई बीमारी आ रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग कोरोना को ठीक ठीक जानने लगे और अभी थोड़े ही टाइम में लोग कोरोना से रिकवर होने लगे. हम खुश भी हुए कि कोरोना के केसेस काफी कम हो रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं वो शुरू हुआ. अभी एक नई बीमारी बच्चों में आई है कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो इन्वॉल्व होती है, वो एक नई बीमारी है. कावासाकी रोग जिसको बोलते हैं. तो अलग अलग बीमारी नई नई आने लगी है. तो मेन रीजन यही है कि सबके पीछे यही बात है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो बनाए रखो. तो सब में यही बात है कि आपकी इम्यूनिटी बनाने रखनी है. अभी जो नई बीमारी आई है, खास करके म्यूकोरमाइकोसिस, हो सकता है कि जो कोविड की ट्रीटमेंट के लिए जो स्टीरॉइड वगैरह यूज होता था,
या तो ऑक्सीजन की जो नली वगैरह है, या तो जो भी उसकी ट्रीटमेंट में एलोपैथिक दवाइयाँ यूज हुई, उसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेरॉइड की वजह से म्यूकरमाइकोसिस होने लगा। और जैसा ही म्यूकरमाइकोसिस के केसेस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब भी वो न्यूज़पेपर में उसकी हेडलाइंस बनी, जैसे डॉक्टर गायत्री मैडम ने बताया कि डर ही हमें मार डालता है, मेरे पास इमीडिएटली दूसरे तीसरे दिन ही लोगों के मोबाइल पे फोटो आने लगे कि सर मेरी आंख तो लाल लग रही है मुझे, या तो मुंह में चांदा जैसा फील हो रहा है, या तो मेरा नाक बंद हो रहा है। तो कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि इमीडिएटली वो बीमारी फील करने लगे हैं। और अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव में ज्यादा बच्चे अफेक्ट होंगे, लेकिन गायत्री मैडम ने बोला कि ऐसा अभी से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या होगा। लेकिन अभी एक प्रिडिक्ट हो रहा है कि बच्चों ज्यादा अफेक्ट होंगे, चिल्ड्रंस। और लोगों को, आपको पता है कि खुद की जान से भी ज्यादा अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसलिए अभी से मेरे पास इंक्वायरी आने लगी कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कोई होम्योपैथिक दवाई हमें दे सकते हैं। तो ये एक फियर अभी से शुरू हुआ है। तो उसमें अभी जो MIS-C करके बीमारी है, उसमें बच्चों में हाई ग्रेड फीवर आता है, या तो उनकी लिम्फ ग्लैंड जो होती है वो इलाज हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, टंग उनकी स्ट्रॉबेरी टाइप हो जाती है, बॉडी पे रैशिश हो जाते हैं। तो ऐसे नई बीमारी आएगी, लेकिन उसके परसेंटेज बहुत कम है। और कोविड जैसे नया रोग है, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि नई नई बीमारी को भी किस तरह से डील करना है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स भी कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि ट्रीटमेंट भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करते रहना है। यही बात है, तो आप सबसे मतलब आराम से सब कुछ को अवॉइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक काफी पॉजिटिव नोट भी है ये कि इतना घबराना नहीं चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डॉक्टर निमृत सिंह मैम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने फिजिशियन की बात की, वी टॉक्ड अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, बट हमारी मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो another very important question is, क्या हमारा इम्यून सिस्टम हमारी मेंटल हेल्थ या हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है? ये ब्लूटूथ है। मैडम अनम्यूट कीजिए, आपको, आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yeah, sorry. Good evening, everybody, and thank you for joining in. Thank you, Dr. Ketan Shah, Gayatri Rawal, and thank you, Jayati, for moderating it. एक humble request है सबको, please आप लोग अपने आप को mute कीजिए. All want, please be in mute so that we can enjoy and we can learn maximum from this session. So ये जो question है mind और body की, that is mental health related to immunity. जब हम immunity की बात करते हैं तो हम physical health की बात करते हैं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रही हूँ, जैसे अभी गायत्री रावल ने कहा, डॉक्टर केतन शाह ने कहा कि fear, many times fear is causing problem. मान लो आपके माइंड में एक तनाव है कि मुझे अगर हो गया, मेरी फैमिली को कोविड हो गया, अगर हमें मेडिसिन समय पे नहीं मिली, तो ये क्या हुआ? ये माइंड में हुआ, आपकी थिंकिंग में हुआ। थिंकिंग ने आपकी बॉडी में क्या कमांड दिया? आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया। तो उसके साथ क्या हुआ? आपका ब्रीदिंग हैवी हो गया, पर्स्पिरेशन हो गई, आपके थिंकिंग डिस्टर्ब हो गई। तो आपकी बॉडी, the body has embodied some feelings which start affecting the body. Start हुआ mind से body में गया, उसके कारण आपकी immunity कम होती है, आपकी anxiety बढ़ती है, and whichever part of the body is more vulnerable, that part gets affected. तो शुरू होता है mind से, but definitely it will affect your sleep, your hunger, नींद कम आनी और भूख नहीं लगनी, बहुत मुंह सूखना, कभी यहाँ बिल्कुल प्यास नहीं लगनी, काम में ध्यान नहीं हो सकता और concentration कम होती है. So there are many things from the mind, they go into the body and it affects our body. आज तक हम लोगों ने माइंड को ना, मेंटल हेल्थ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी. जब हमें टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं.
हम इमीडिएटली हेल्प लेते हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगी यहाँ पे कितने लोगों को ऐसे लगा कि वी आर नॉट फीलिंग वेल, हम खुश नहीं है, हम डिस्टर्ब हैं, हम एंग्शियस है, हमें बहुत फियर है, हमें कुछ फोबियाज हो रहे हैं, और कितनी बार हमने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से हेल्प ली। तो बॉडी पे अफेक्ट होता है अगर माइंड डिस्टर्ब होता है। सो माइंड एंड बॉडी आर डायरेक्टली अफेक्टेड। इनफैक्ट देयर आर स्टडीज, एक हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्टडी हुई थी जहाँ पे देखा गया था कि द पीपल हु रिप्रेस, इमोशनल सप्रेशन जो करते हैं, 30% of them die before age and 70% are likely to be diagnosed of cancer. So it is a clear cut connection between the mind and body. So it's really important now. कोई ऐसा समय, it's not के हम अपने माइंड की बातें बाद में करें, माइंड और बॉडी बिल्कुल जुड़ी हुई है और ये हमें समझकर चलना है आगे। Thank you so much, ma'am. I think the link between mind and body is very important for people to understand, especially during these times. हमारे थोड़े questions हैं chat box में. I think एक डॉक्टर केतन के लिए है कि कोविड के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कितने, till what extent do they work, and black fungus के लिए कौन सी medication use कर सकते हैं? मैं एक बात बता दूं कि कोई भी कोविड के पेशेंट में बहुत कम ऐसे पेशेंट है कि जिन्होंने एक ही सिस्टम पे दवाई लिया हो। होम्योपैथिक भी लिया होगा, आयुर्वेदिक के उकाले भी पिए होंगे, एलोपैथिक की एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी लिया होगा। तो बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई है जो कोविड में भी हेल्प करती है, एंड पोस्ट कोविड भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके खांसी है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो रहता है, वो सब में होम्योपैथिक काम करती है। और म्यूकोरमाइकोसिस केसेस में भी मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ होम्योपैथी से केस ट्रीट किया है, लेकिन कुछ जो मुंह में अल्सर वगैरह केस में या तो साइनस वगैरह के केसेस में एलोपैथिक के साथ साथ या तो एलोपैथिक के ऑपरेशन के बाद जब लोग हमारे पास आते हैं तब बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो हम सिम्टम्स के हिसाब से देते हैं और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू सर। एंड किसी को कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। मूविंग ऑन टू डॉक्टर गायत्री, आजकल वैक्सीन के रिलेटेड भी काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं एंड लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी में काफी सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। सो व्हाट आर दीज मिसकंसेप्शंस एंड आर दे ट्रू? मैडम अनम्यूट कीजिए आपको। सॉरी फॉर दैट। या सो वैक्सीन जो है वो एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है एंड वो प्रिपेयर भी करता है किसी भी ऐसी बीमारी के अगेंस्ट। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है वो, ठीक है, उसके सामने लड़ने में वो हेल्प करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द वैक्सीन। नाउ वैक्सीन आपको इस बीमारी से बचाता है या सुरक्षित भी रखता है। नाउ ये कहना मुश्किल है कि कोविड को फैलाने में ये वैक्सीन कितना हेल्पफुल रहेगा, यू नो, टू फॉर द ट्रांसमिशन, हाउ इट विल अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ दिस कोविड। That part is very difficult to predict or say. Now, having said that, India में, as all of us know, दो तरह के vaccines हैं. One is Covishield and one is Covaxin. Now, both the vaccines are disease-modifying vaccines, and they are very, very safe. इसको जैसे पहले था कि 1 महीने में लेना है, but now the norms have changed. We have to take it, ये 2 डोज में दिया जाता है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में लगभग 80 डेज का, अभी नाउ दिस इज अ करंट सिनेरियो, 80 डेज का गैप पर रह के आपको दूसरा जैब लेना है। फर्स्ट शॉट जो है वो पार्शियल इम्यूनिटी आपको देता है। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू टेक योर सेकंड डोज, चाहे वो आप 1 महीने में लो, चाहो आप 80 डेज के ऊपर हो गया है, जो भी है, बट सेकेंड डोज प्लीज लेना है, आपको मिस नहीं करना है। सेकेंड डोज जो है वो आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्सेस है उसको बूस्ट कर देता है। दैट इज व्हाई सेकेंड डोज इज वेरी वेरी एसेंशियल। टॉकिंग अबाउट द साइड इफेक्ट्स, यस, मामूली साइड इफेक्ट्स है, नथिंग टू वरी। जनरली पीपल मे और मे नॉट हैव दीज साइड इफेक्ट्स, बट जो देखते हैं वो फीवर, बॉडी एक,
redness, pain at the site of injection, laziness, drowsiness, ये सारे common symptoms है. बहुत ही माइल्ड होते हैं, डोलो ले लो, अपने आप चले जाते हैं. किसी किसी को हाई ग्रेड फीवर भी आता है, बट देयर इज नथिंग टू वरी. दिस इज जस्ट दैट योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू द वैक्सीन एंड हेंस व्हिच इज अ गुड साइन. And then a very rare occurrence is that of blood clot. Blood clot बहुत कम देखने मिलते हैं. Again, people with comorbidities, I do not know. Still, it is very under question that why blood clots are there. But yeah, it is a very rare event that we get to see. Myths अगर बात करें, humors के अगर बारे में बात करें, then I have had people who are asking me whether this vaccine will cause infertility. It's a myth. It's wrong. Second myth that people, or second question that people ask is whether these vaccines change the DNA in our body. Now, वो भी गलत है, वो भी rumor है, वो भी एक myth है. These vaccines, as I said earlier, are absolutely safe. I've already had COVID, so post-COVID, in US there are different dosages जहाँ पे हम लोग दे रहे हैं. US CDC, that is Centers for Disease Control and Prevention, they believe that immediately after COVID होने के बाद आप immediately ये vaccinations ले सकते हो. WHO says that 6 months के लिए आपको नहीं लोगे vaccine तो it is all right, because your body already has those natural antibodies within you. So 6 महीने तक अगर नहीं लोगे तो it's fine. In India, we believe that 1 to 3 months of gap between your recovery and vaccination आप ले सकते हो. तो post COVID also vaccination लेना उतना ही important है. Again, what I'm trying to say is we have breakthrough cases also. Breakthrough cases वो होते हैं कि दोनों injections लिए हैं, vaccinations ले लिए हैं, दोनों jabs, फिर भी COVID होता है. A very good example out here, maybe ma'am will share a little bit later on. So vaccinated होने के बावजूद आपको COVID हो सकता है, but the most important thing is that those cases will have only mild to moderate symptoms. Right? And again, sorry? I will add after you finish. Yes. Yes. Now post-infection Covishield जो है jabs वो 8 to 12 weeks के बाद आप ले सकते हो, और कोवैक्सीन है वो 4 to 6 weeks के बाद आपको लेना होता है. So yes, a very big yes to vaccines. Whenever vaccines are available, जैसे आपकी एज ग्रुप के हिसाब से जहां पर भी अवेलेबल है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, irrespective of whichever vaccine you are taking, please take your jabs. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. निम्रत मैम, एक क्वेश्चन आपके लिए है चैट बॉक्स पे कि लोग बहुत डर रहे हैं कोरोना से, एंड कोरोना हो भी गया, फिर भी न्यूज की वजह से एंड सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हो हल्ला हो रखा है, तो फिर उससे कैसे डील करें? All right, beautiful question, because ये हकीकत है कि ये जो सेकेंड वेव में हो रहा है ये हमें बहुत समय नहीं दे रहा है, एंड सडनली इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड बढ़ गई है. और स्पेकुलेशंस में पहले हमें डर था, अब बहुत स्पेकुलेशंस में हम जा रहे हैं. So one of the things I will say is that there are two circles. एक होता है circle of control और एक होता है circle of you think about things, you are influenced by news. जैसे आपने कहा example, news, media, anything that is happening outside. COVID कब खत्म होगा, हम कॉलेज कब जाएंगे, स्कूल कब जाएंगे, ये हमारे बाहर है. There is a circle of control, means it's within my control that I can change things. What time I wake up, what time I sleep, how do I spend my day, मैं कैसे अपने आपको physically, mentally agile रख सकती हूँ, ये सब मेरे control में है. So we need to exercise our time in a proper way कि हम अपना समय ऐसी चीजों पे
स्पेंड करें जहाँ पे हमें कोई फायदा हो। पर्सनली स्पीकिंग मैं न्यूज नहीं देखती, मैं सुबह उठ के पहले अपने एक्टिविटीज करती हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक मेडिटेशन, लाइक ऑल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप माई एनर्जी अप। सुबह का टाइम होता है जब हमारी एनर्जी और हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। That is because we have just been very peaceful after sleep. It's a spiritual experience. हम उसमें क्या भरते हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन अलग लोग अलग चीजें भरते हैं अपनी लाइफ में। Some people like to put on news, spread messages, spread rumors, go to WhatsApp. So my sincere appeal is, please do not go into wrong news, because आधी न्यूज तो misleading होती है. That is why this program was very important for you to hear from the doctors what is true. So having said that, do not carry the monkey on your shoulder constantly. जब हमारे, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी थिंकिंग ही नेगेटिव है तो आप क्या सोच रहे हो, आप वो नेगेटिव लूप में चले गए, फियर क्रिएट होता है और फियर बॉडी के अंदर जाके सेटल होता है, उसको हम बोलते हैं dis-ease. It creates a disease or a disorder in the body. So what are the things which we need to do? Actually we can stop. एक acronym है stop. So पहली चीज stop में है stop, take a pause for a moment. जब आपके माइंड में कोई तनाव आ रहा है, कोई टेंशन आ रही है, सिर्फ few seconds के लिए, बहुत टाइम नहीं लगता है करने में, just stop, take a pause, अंदर चेक इन करो. So T is take a deep breath and try to become mindful कि बॉडी में क्या हो रहा है. जब मैं तनाव में आती हूँ, my heart beats faster, my pulse rate becomes higher, my mouth starts drying. So notice what is happening in the body. Then third is observe and acknowledge that you're not feeling comfortable. Because कोई भी जब तनाव होता है शरीर में, you feel restless and agitated. And lastly, P is for proceed after you have checked in. Check in, don't check out. हम सब कुछ ना इंटरनेट पे जा रहे हैं. How about internet? How about connecting with the inner self? और inner self आपको कभी डराता नहीं है, right? So the vibrations of fear are on a very low frequency and vibrations of love are very high. So if we are on a higher frequency, then we will not be in the vibration of fear. आप एक ही जगह पे हो सकते हैं, या तो fear में हो सकते हो, या you are in place of love. So we have to choose that wisely. Thank you, ma'am. I think a lot of people can take back the stop, method and practice it at home. My next question is to Dr. Ketan Shah. That आजकल एक बहुत बड़ी चीज हो रखी है न्यूज पे, is that आयुर्वेदिक कंट्रोवर्सी जो हो रही है. बाबा रामदेव ने काफी सारी चीजें बोले हैं कि एलोपैथी नहीं चलती, लोग मर रहे हैं, and doctors are not working. So what are your views on it, and is this healthy? नहीं, अगर मैंने पहले ही बोला कि जब भी कोई बीमार होता है, या तो जब से कोविड की शुरू हुए, कोई एक सिस्टम को लेके नहीं बैठे हैं, सबने सबको जो वो एडप्ट करने का ट्राई किया है. सबको किसी पे एक पे भरोसा नहीं है, ऐसा ही लग रहा है, या तो सबको ऐसा है कि बस मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं. और आप जो बाबा रामदेव की बात कर रहे हो, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ एक एलोपैथ डॉक्टर है, एक होम्योपैथ डॉक्टर है और एक साइकोलॉजिस्ट है. तो ऐसे ही मतलब हमें एक दूसरे के पूरक बनना है, एक दूसरे के सपोर्टिव बनना है. कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होती है, कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं होता है, न होम्योपैथिक कंप्लीट है, न आयुर्वेदिक, न एलोपैथिक. तो यहाँ इस महामारी में जब इतने लोग खतरे में हैं, तो सबको मिलजुल के एक कनेक्शन बना के, जिसका जो अच्छा है वो सब साथ में रह के हमें बाहर निकलना है, एक यूनिटी की तरफ से हमें बाहर आना है. तो बाबा रामदेव ने जो भी किया है, हो सकता है उसे एलोपैथ डॉक्टर्स का भी मोरल खत्म हुआ हो, क्योंकि वो लोग ने भी तो शुरू से ही रात दिन मेहनत की है. तो सबको साथ मिलके चलना चाहिए. Yes, very true, sir. Thank you so much. Dr. Gayatri, आपके लिए थोड़े questions है on the chat. That सबसे पहले अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन है, तो उनमें डिफरेंस क्या क्या है, एंड दूसरा जो नए नए म्यूटेशन आ रहे हैं कोरोना के, तो अगर
किसी को पहले इन्फेक्शन हो गया तो क्या दूसरा इन्फेक्शन, जो दूसरा म्यूटेशन है, वो उतना ही सीरियस होगा? मैम यू आर ऑन म्यूट. आपको हाँ We keep on forgetting that, nahi? Fine. First of all, vaccines actually वैसे देखा जाए तो more than 2 are there. अभी न्यूज़पेपर में कुछ आई थिंक आज के या 2 दिन पहले ही था, शील्ड, we have Sputnik V, we have Biological E, then आजकल नया है Johnson & Johnson का Ad 26.2.5, then we have Zyco D, mRNA 1273, BNT 162, Indian Immunologicals, then we have NVX. I mean, these many vaccines are there. More or less all the vaccines are the same, right? Vaccines generally कैसे बनते हैं कि 2 things are there in the vaccine, making of a vaccine. One is the vaccine vaccine when introduces, it triggers your body to antibodies बनाने के लिए उसको push करता है, ठीक है? So that then it gets inside and then it tells your body to make a protein that will work against this virus. And one is you introduce a small bit of that virus into the body. So over here, what we are working is with the first variant. We are actually, the vaccine is telling our body to prepare that protein. Right, so they are absolutely safe and there's not much of a difference. There's a controversy going on कि एक बार एक vaccine लिया है, not even controversy, but we are not sure कि if one people has first is you've taken a Covishield, so yet we are not sure कि अगर वो इंसान कहीं और गया है और second dose उसको Covaxin का लेना पड़ा, then what is the outcome? We are still working on it. We are still not sure. So yeah, I think I have answered the question. Yes, thank you, ma'am. Nimrat ma'am, दो चीजें हैं. There is a question from a doctor that how do you counsel patients who have COVID and also their family? To add on a little in this question, a lot of people are also losing their loved and dear ones. So how do they cope up with this grief, and how can you even, counsel your family members in that case? Yes, I think this is so important that from the time, the person gets diagnosed with COVID and the person is so ill prepared for that, और डर एक जन का नहीं होता, अब तो फैमिलीज में हो रहा है, तो ये भी होता है कि अगर मुझे है तो क्या दूसरों को भी है, अगर सबको है तो फिर क्या होगा. So this fear, actually again, ये fear ही obsession हो जाता है, ये ही एक trauma हो जाता है. तो it's a whole loop. So that is one, that how does one, it's a mind over matter. Or here, very honestly, I would like to talk of my personal incident. On the 15th, on the 15th of May, I was diagnosed with COVID. I was COVID positive. And I had to stay inside the house. I was quarantined for 1 week. I was scared कि मेरे बेटे और husband को भी हुआ तो क्या. Luckily उनको नहीं हुआ था. माइल्ड फॉर्म था, मेरा लोड इतना नहीं था, लेकिन ये मैं अभी ग्रैटिट्यूड की बात भी कर सकती हूँ कि ये मैंने क्यों सोचा ये वेबिनार का, बिकॉज ये जो डॉक्टर्स बैठे हैं वहां पे, डॉक्टर केतन शाह और डॉक्टर गायत्री रावल, ये मेरे सेवियर्स थे. तो डॉक्टर गायत्री रावल ने मुझे तुरंत कहा कि आप टेस्ट करवाओ, आपको कुछ भी जो भी है पता चलेगा. आई गॉट इट डन. और उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू हैव अ डॉक्टर ऑन कॉल इमीडिएटली, आप थोड़ा ध्यान रखना. मैं डॉक्टर केतन शाह के पास आई डोंट नो कितने सालों से जाती हूँ. मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट था कि अगर मैंने डॉक्टर शाह से बात की तो आई एम श्योर कुछ तो निकालेंगे वो रिजल्ट. उन्होंने बहुत कामली मुझे बोला. ना व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज दिस इज वेयर योर इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इन. सो ही टोल्ड मी, मैडम आप ट्रस्ट करते हो कि ये आपको हेल्प करेगा? ऐसे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं.
So he sent me the medicines. I was having it every 1 hour. जैसे डॉक्टर गायत्री रावल ने बोला कि you have to keep checking, वो चेक इन कर रहे थे कि मैं अपना ऑक्सीमीटर भी चेक कर रही हूँ, टेम्परेचर भी कर रही हूँ. आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. सो एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ और मुझे कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ी और बहुत स्मूथली इजीली मेरी रिकवरी हो गई. बट व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबका ऐसा होगा. सब केसेस अलग होते हैं. दैट इज व्हाई बिलीविंग इन द डॉक्टर, यू आर ट्रस्टिंग. अगर आप होम्योपैथ में हो, होम्योपैथी में ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट दैट, बट ऑल्सो बी रेडी फॉर एलोपैथी. So the question is that अगर हुआ, second, the most important thing is अगर loss है. Very honestly, I lost a very, very dear friend during COVID times, and the tragedies हम मिल भी नहीं पाए. तो ये जो grief, जिसको हम grief बोलते हैं, grief is not a problem to be solved. It is a process to be lived. हम grief को ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो manage कर लेंगे. ग्रीफ में ट्रू फीलिंग्स ऊपर आती है, दर्द है, इसके भी एक साइकिल होती है. देयर आर 7 स्टेप्स इन ग्रीफ. जो पहली स्टेप होती है, देयर इज अ नमिंग. मतलब इंसान कभी बिलीव नहीं कर सकता जो हमारे साथ कल तक था वो हमारे साथ नहीं है. दैट्स द ग्रीविंग पार्ट. देन द सेकंड इज अ लॉट ऑफ ब्लेमिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर. व्हाई मी? ये मेरी फैमिली में क्यों हुआ? Then there is also many times, unfortunately, लोग गुस्सा डॉक्टर्स पे निकालते हैं जब डॉक्टर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं. Then there is depression. Then there is a slowdown. और फिर कर्व ऊपर जाती है where the person accepts के ठीक है, ये हुआ है, ये हकीकत है. Life has to go on. And then there is this thing of acceptance and moving on. Now ये कितना समय लगेगा ये कोई कह नहीं सकता. It can take 6 months, it can even take a year. कुछ लोगों का ग्रीफ टाइम कम होता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इमोशंस को वैलिडेट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए. जिसकी जो फीलिंग है उसको ऐसे मत बोले कि ठीक है ना, हो गया, सब कुछ हो गया, वी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. वी कैन नॉट डू दैट. ग्रीफ इज अ रियल थिंग. डू प्लीज रिस्पेक्ट इट. अगर कोई रो रहा है, normally we say don't cry, but where will the grief go? It will stay inside the body. जैसे मैंने आपको कहा, बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, वो ही डिसईज बनेगी और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना होगा. So please realize that it is perfectly normal, healthy to feel your feelings. So talking about your grief, talking about the fears, जैसे ये डॉक्टर्स है, they are telling you right what the do's and don'ts of COVID are. What are the myths around COVID? कई बार हम डर के ही डर खत्म हो जाते हैं. ये तो मानी हुई चीज है. जो 4th स्टेज ऑफ कैंसर में था और जो 1st स्टेज में था, 1st स्टेज वाले को कह दिया कि आप 4th स्टेज में हो और 4th स्टेज वाले को कह दिया कि आप रिकवरी में हो. Who do you think recovered? So mind is stronger than matter. Mind is stronger than the body. Body only follows the mind. मैडम मैं कुछ ऐड करूं? Sure, please. जो आपने ब्लेमिंग की बात की ना, मेरे पास एक म्यूकरमाइकोसिस का पेशेंट आया. उसने बोला कि मैं हर रोज कुत्ते को खाना डालता था, बर्ड्स को दाने डालता था, तो भी मुझे जब से म्यूकरमाइकोसिस हुआ तो अब मैंने तय कर दिया है कि बस मैं ये बंद कर दूंगा. और उसको म्यूकरमाइकोसिस में सिर्फ एक जगह पे अभी टंग पे ही उसको डिस्कलरेशन था. तो मैंने उनको समझाया कि आप ये सोचो कि आपने ये सब किया ना, लोगों को तो म्यूकरमाइकोसिस में अपनी आंख भी रिमूव करनी पड़ती है, फेस का एक कुछ पोर्शन भी निकालना पड़ता है, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ा. शायद हो सकता है कि आपने ये जो पुण्य किए हैं उसी की वजह से आप इतनी छोटी तकलीफ में से बाहर आ गए. तो उसको इमीडिएटली लगा कि नहीं, आपकी बात सही है. तो ये एक ब्लेमिंग की बात है कि आप किस तरह से आपके प्रॉब्लम्स को देखते हो. वेरी ट्रू सर. सर आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी का रोल प्री एंड पोस्ट कोविड स्टेज में क्या होता है. एंड टू ऐड ऑन टू दिस, काफी सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो लोग फेस कर रहे हैं. तो हाउ कैन होम्योपैथी हेल्प देम? बहुत अच्छे रोल है होम्योपैथी में,
क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि हॉस्पिटल में रहे, ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन घर आने के बाद भी उनको ऑक्सीजन 15 दिन तक, 20 दिन तक लेना पड़ा है। काफी जो केसेस मैंने देखे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में, उसमें जैसे मैडम ने बताया, ऐसे पाल्पिटेशंस फील करते हैं पेशेंट, खांसी उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है, क्योंकि कुछ केसेस में लंग्स फाइब्रोसिस हो जाते हैं, कुछ लोगों को स्किन इरप्शन होता है। एक यूएसए से मेरे पास एक पेशेंट जो अभी कंसल्टेशन कर रहा है, वो बोलता है कि जब से वैक्सीन ली है उसके बाद उसको बॉडी एक होने लगा है। तो पोस्ट कोविड भी कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट वैक्सीन भी कॉम्प्लिकेशन है, और ये सब में एक वीकनेस भी बहुत प्रॉब्लम है। वीकनेस बहुत लोग फील करते हैं, ब्रेथलेसनेस बहुत फील करते हैं लोगों, काफी समय तक के थोड़ा काम करने के बाद थक जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी रहती है। ये सारे केसेस में हम सिम्टम्स देख के दवाई देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत यानी बहुत, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक एलोपैथिक दवाई ली है, अब ज्यादा उसको एलोपैथिक दवाई नहीं दे सकते हैं। ऐसे टाइम में आप होम्योपैथी पे स्विच हो जाओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे हैं। Thank you so much for your insights, sir. Dr. Gayatri, for you, there was a question where a lot of people have different myths about post-COVID recovery. तो उस तरह से हम कैसे डील करें? Even as a doctor, what are your views and your guidelines for us? Okay. Post-COVID recovery now, we have been reading about this a lot. सुना भी है, अभी हम लोगों ने बातें भी करी. Something called as post-COVID complications majorly, mucormycosis. वो आपका भी मतलब black fungus, white fungus. I've heard a yellow fungus as well. So all these things are nothing but different forms of fungal infections that happen post-COVID. Yeah, so these are usually seen in patients जिनको comorbidities होती है. तो ये नहीं है कि आपको डर जाना है कि यार मुझे कोविड हुआ है तो मुझे फंगल इन्फेक्शंस हो जाएंगे. No, it is seen more in patients who have comorbidities, मतलब highly diabetic patients, high blood pressure. So ऐसे लोगों में ये ज्यादातर देखा जाता है कि कोविड के बाद इनको रिकवरी फेज में, मतलब they have recovered from COVID, they are RT-PCR negative, yet they develop mucormycosis. Again, as Dr. Ketan just said, there's another condition called as multisystem inflammatory syndrome in children, MISC. ये ज्यादातर हम लोग देखते हैं 5 to 15 years के एज ग्रुप में, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, और ये देखा जाता है अगेन those children who have had COVID और फैमिली में हिस्ट्री है कि कोविड हुआ है. So these children were in very close contact with maybe either mother या father, या न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें मदर फादर दोनों को हुआ है एंड द चाइल्ड इज देयर, तो वो चाइल्ड को ऑब्वियसली कहीं आइसोलेट करके तो रख नहीं सकते. सो दोज चिल्ड्रन they develop this inflammatory multi-organ inflammatory syndrome. यहाँ पे symptoms, again I will just speak about those symptoms. Of course Dr. Ketan has already covered it, but symptoms जैसे कि rashes है, redness of eye, coloration of the lips, tongue, stomach related issues जैसे vomiting, diarrhea, stomach ache, weakness होती है, they feel fatigue, drowsy, urine output बच्चों का कम हो जाता है as compared to how much they are taking in. So all these things का थोड़ा अगर ध्यान रखोगे तो आप जल्दी पकड़ पाओगे and not going on to these are again all post COVID recovery phase में ही ये सारा देखा जाता है. And the treatment to this is very simple. The parents should get vaccinated because parents ही है जो अपने बच्चों का ध्यान रखने वाले हैं. So of course the child, being a child, cannot be kept into isolation. So definitely vaccination plays a very major role here. Again, screening of the family members. मतलब families जिनके यहाँ कोविड हुआ है उनको अगर हम लोग स्क्रीनिंग करें तो पता चल सकता है कि maybe this child has a high chances of contracting this condition. Again, post-COVID recovery, in my opinion and in my clinical experience, what I've seen is
exercises, जो बोलते हैं physiotherapy for lungs, that plays a major role. So I would suggest कि अगर आपको COVID नहीं हुआ है, you are one of those fortunate people, please do these exercises. If you have COVID, please do these exercises. And if you have recovered, please do these exercises. Yeah, so we have many exercises. I have another channel where I have already demonstrated all those exercises. So if anyone is interested, maybe we can. Ma'am, you Or can we just can have write one the channel's physiotherapy name on the session chat also. box. Yeah, you can Physiotherapy just for write, lungs, we can have one session. yeah, you can also Oh, write the name of your channel on the chat box so they can refer to it. Oh yeah, sure. पोस्ट कोविड में एक और भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पोस्ट कोविड 14 डेज से आपको ऑब्जर्व करना है 3 से 4 महीने तक। ऐसा नहीं है कि अभी आप 14 डेज हो गए और ठीक हो गए। एक और भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ये है कि ब्लड क्लॉटिंग, और उसकी वजह से ब्लड ठीक हो जाता है, जो डी-डायमर टेस्ट वगैरह से सजेस्ट होता है, और वो क्लॉट की वजह से कई बार हार्ट अटैक भी आता है। कुछ लोगों को वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो वो डॉपलर से पता चलता है। और दूसरा कि रिकवरी रेट की बात करूं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि उसका ऑक्सीजन तो 2-3 दिन में बंद हो गया, मेरा क्यों अभी 15 दिन हो गया तो अभी मुझे ठीक नहीं हुआ है, मुझे क्यों अभी तक खांसी ठीक नहीं हुई है, मुझे क्यों अभी वीकनेस है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट और उसकी एज और उसके दूसरे सब फैक्टर्स को डिपेंड करती है। तो आप कभी रिकवरी में कंपेयर मत कीजिए किसी को। मुझे इतना ही बोलना है। Thank you, sir. I think looking at the time, I think we have a last question for Nimrat ma'am. एक चीज बहुत कॉमन है कि अगर if we have any problem, fever होता है, we rush to the doctor, right? सर्दी खांसी होती है, we call up our physician. But हमें कब पता चलता है कि अगर मुझे कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो मैं कब हेल्प के लिए रीच आउट करूं? Ma'am, you're on mute. Yeah, so we never reach out straight to a mental health practitioner. कितने लोग हैं जिनको जरूरत होती है लेकिन हम कभी नहीं करते, और हम अपनी फैमिली से भी छुपाते हैं because we don't want to disturb them. हम बाहर भी नहीं निकल सकते तो हम बहुत चीजें बात नहीं कर सकते। और I don't know whether you all have heard of this thing called toxic positivity. हम उसको ना पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, शुक्र मनाओ, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत लकी हो, हम ऐसी ऐसी बात करके ना फीलिंग्स को नकार देते हैं। वी आर रिजेक्टिंग एंड इनवैलिडेटिंग फीलिंग्स एज इफ यू कैन नॉट फील सैड, यू कैन नॉट फील लो, you cannot feel weak, you cannot feel vulnerable. So I would like to appeal to everybody that please have a reality check. आप अपने अंदर चेक इन कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, आपकी किसी को मिलने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, आप इरिटेटेड रहते हो, आपका जो बोलते हैं कि physically your hunger, your physiological needs are low, and अगर ये at least 2 weeks के लिए last होता है, if it lasts for 2 weeks or more, then definitely you must call out and take help from a psychologist, or call your doctor and see how he can help you. Because somewhere जब हमें लगता है mental health ऐसे ठीक हो जाएगी, आप busy हो जाओ, आपका mind वो हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. No, I think mental health, there's come a time when all of us have to understand, we have to respect that also. जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कुछ तनाव है, हम क्यों किसी से बात क्यों नहीं करते? So I'm a very big promoter of mental health. Please take help at the right time. Don't wait when things go really bad and then you take help. Right? So I think ये जो हमारी संस्कृति में कुछ चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, ये थोड़ा सा ना हम मेक ओवर कर देते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का, which I think we should really be taking care of. Make yourself positive by actually seeking help, calling out, लोगों से बात करो, journaling करो, meditation करो, plants grow करो, एक्टिविटीज करो, जो भी चीजें आपकी छूट गई थी
उसको उसमें आप एक्टिव हो जाओ. So there are so many ways. Even after that, if you feel that it's not working for you, please call out to a doctor. मैं मेरे एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पेशेंट्स को करीबन 1.5 साल से ट्रीट कर रहा था डिप्रेशन के लिए, लेकिन मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था. फिर मैंने मैडम की हेल्प ली, वो पेशेंट को मैडम के पास भेजा और कुछ ही सेशन में मैडम से उसने बात किया और जो भी काउंसलिंग हुआ और वो पेशेंट आज काफी मतलब अपने डिजीज से मुक्त हो गई. जो मैंने 1.5 साल में नहीं किया, मैडम ने कुछ 2-3 महीने के सेशन में ही उसको बाहर ला दिया. तो मैं बोलता हूँ कि जिसको जरूरत हो, ऐसा नहीं जानना चाहिए कि मुझे मानसिक बीमारी है इसलिए मैं कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ. Thank you so much, sir. And with that, we are actually done with this session for today. But before we leave, I would like to thank all our experts and also the participants for taking the time out. And honestly, Dr. Gayatri, Dr. Ketan, Dr. Nimrat, your knowledge and your expertise has provided an abundance of resources for people today, from checklists to data on vaccines, the myths, the misconceptions. Everything was so on point, and a lot of people are going to take back a lot of knowledge, and they're going to shatter the myths and make sure that they're helping out their family as well. So everyone who have attended, please share your knowledge and make sure whatever you've learned today is something that is reached out to your friends and family. Again, thank you so much. Jayati, I want to say something. I really feel I'm overwhelmed the way you were the sutradhar. You tied everything so beautifully together. So thank you so much. And we are looking forward to more such sessions. So the ones who are attending, if there's anything you want us to be talking on, because this is so beautiful, it's a rich, very few people work in synergy. I think we are very blessed that we have a doctor, homeopath with us, and I'm full of gratitude that they are here today. So thank you so much. Thank you. I think the integration of 3 different fields has resulted in the well-being of an individual. Thank can you. I say something? Yes, ma'am. Yes, Yeah, there are a few questions regarding what is the difference between vaccines and all. Can we just get back to them on mail? Can we just answer their queries if they have any still left? So sure. I think suggest that all the speakers, if you can, type down your email ID so the participants can reach out to you if they have any doubts. Sure. If that is you, if you're comfortable with that. Yeah, sure. That's my number in case. Dr. Ketan or Nimrat, now are you putting your email ID? I actually put it. I don't know. Did it not come? No, ma'am. You might have sent it maybe directly to someone. Jayati, just can you do that for me? Yeah. I don't know why that didn't happen. If it suits all, we can actually have a half an hour session, 20-25 minute session of the breathing exercises. We can actually demonstrate these exercises if it is convenient for the next. Yes, we can do it. We'll organize something, Gayatri ma'am. Thank you so much for that. Thank you. Stay safe, everyone. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. God bless.